इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है, वो कहती है कि बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट नहीं हो पाई। मैंने कहा कि इकोनॉमिक टाइम्स को क्या लेना देना बाबा साहब की जयंती हो रही कि नहीं हो रही। Just not to publish your news. सिर्फ मेरी न्यूज पब्लिश ना करे इसलिए हर पेपर को 1-1 लाख रुपया दिया था। ये 23 की जयंती मैं इंडिया में देख कर आया हूं। इस साल ये जयंती लगभग 5,000 करोड़ की थी। जय भीम, नमो बुद्धाय टू एवरीवन। Thank you so much for this wonderful introduction and such an enlightened one session from today afternoon. I thank AICS, Ambedkar International Coordination Society Canada, Chaitanya Association and Shri Guru Ravidas Sabha for inviting me for Dr. B.R. Ambedkar Symposium on Equality, which was organized at Vancouver from 21st April under the chairmanship and under the management of Jai Virdisa and all his team. Paran Kentji is there, Harjinder Mal is there, Chanchal Mal madam is there, Jai Virdisa. We had a great symposium from my arrival on the date of my arrival, and that is on 20th April, till today, until I am having one day left. I have been astonished by the thinkers I have met at various university levels. So I really thank Chanchal Mal madam and Harjinder ji for recommending my name to Dr. B.R. Ambedkar Symposium, and they have invited me, Param Kent ji, President of Param Chaitanya Association, all the organizations. Now we have one more organization, Ambedkar Students Association in Calgary. So up till this starting of this event, I was not known that I have to speak on the topic caste discrimination in global perspective, because from the day one I am engaged in so many lectures that I have least bothered to see what is the subject, and literally I have not seen the pamphlet till today. So I was making my notes that what topic should I address. One more request is from Chanchal Mal madam, is that there are many community members are there who will not understand of English also, so little bit Hindi I have to shift, and it is literally a chemical locha in our mind when we have to shift from Hindi to English and English to Hindi. So so I will try to shift to in both languages. So should I speak in Hindi or should I speak in English? So I will stay with English, or whenever it is a demand of the topic to shift to Hindi, I will shift to Hindi. So back to the topic, caste discrimination in global perspective. As I am not a globally, I am not president of any other global country, I am a resident of India. But some global incidences I will like to share. When my layover was in Singapore, I was sitting at the chair, and there was some group of people sitting over there, and one of the men started talking to the fellow commuter who was sitting to his next chair. Both were looking as Indians, so their voices I had on my ears. The one guy started saying that, "Oh, my name is this and this." He also introduced himself. And his next question was, "Are you Indian?" The person sitting next to him in Singapore at the airport, he asked, "Are you Indian?" The reply from that guy was, why you want to know my origin? Are you racist?" And that sentence clicked in my mind. The guy, just who was asked that what is your country, he replied that, "Are you racist?"
But in India, we are again and again are compelled to give answer which village, which caste, which subcaste. So comparatively, when in the global perspective, to ask the origin of country is termed as racist, but still in India, to ask one's caste is not termed as a casteist. So this was my first experience. And when I was in Australia, I would not like to name the person because I have not got his permission to quote him. He showed me one email. He was working in some enterprise over there. Some Sharmas was working over there. He showed me a physical email which says that we belong to upper caste and this man is a manager of this enterprise and our religion does not allow to work under a person who belongs from a lower caste. This was the official email sent by these upper caste woman, that too a woman, to the enterprise's head office, and the head office replied, "What do you mean by caste? We don't have any such policy." So why the fight which is going on in the global perspective to add caste as a protective category, why it is needed? Because under the table this all situation is going on. I have been at the California in 2019 or 20, I think 19, before lockdown. I had visited these homes who are not, they are not like to mention their names in the interviews, but I have personally visited their houses. I have personally witnessed what is going on in a country like US. In 1916, Dr. Babasaheb Ambedkar, when the Shri Guru Ravidas Sabha of New York took me to the Columbia University, they showed me Dr. Babasaheb Ambedkar bust was installed over there, and right to Babasaheb Ambedkar's bust, there was a glass table, and under that glass, Babasaheb Ambedkar's first sentence was written over there, that how he feels when he landed in United States. Babasaheb Ambedkar's sentence, Babasaheb Ambedkar's words was like that, ki in my life, this is the first time which I am experiencing what do you mean by equality. मैं मेरे लाइफ में इक्वलिटी, समानता क्या होती है, यह पहली बार मुझे यूएस में आकर पता चला. This was the sentence, this was the words used by Dr. Babasaheb Ambedkar. And what the words we got to hear in the symposium, one of the student, he was delivering his speech in 2023. He says कि मैं जब इंडिया छोड़कर यूएस आया तो मुझे लगा मेरे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन यहां पर भी मेरे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया गया. In 1916, Baba Sahib says, this is the first time I am experiencing equality in my life. And in 2023, the same student belonging to the same community says that I have to undergo the caste discrimination in United States. 1916 to 2016, 100 years. 2016 to 2020 plus 4 years plus 3, and 117 years later, the same community is experiencing discrimination in US also. This is a clear indicator of Babasaheb Ambedkar, what Babasaheb Ambedkar told in wrote in Hindus as a caste
the essay which was Baba Saheb Ambedkar wrote, if Hindus migrate to world, then caste will be a world problem. This is a clear indicator that Hindus are migrating to the world, and along with them, they are carrying the garbage of caste to these countries. This is a clear indicator. So these are the two encounters I got about caste in globally, regarding our global perspective. What discrimination I have to undergo in my life, I will like to share with all of you. Dr. Baba Saheb Ambedkar wrote, Waiting for Visa, his own biography, his 6 incidents he mentioned in that essay. Baba Saheb Ambedkar mentioned 6 caste discrimination incidents which happened with him in waiting for visa. When I was in my last year of my graduation, we call it third year of BCom, I did my graduation from commerce. I was having a professor, Mr. Joshi, who was very fluent in accountancy, financial accounts. I'm an account background guy. We used to love his teaching, and I was very much studious in accounts. I love these accounts and economic aspects, everything, finance aspects. So I was the student from the whole class who used to complete the answer before the class. So हमेशा कोई भी क्वेश्चंस सर ने पूछा तो मेरा हाथ पहले उठा था, मेरा हो गया आंसर, मेरा आंसर आ गया. तो एज अ स्टूडेंट जब हम लोग अपने एज 18s में होते हैं, टीन्स में होते हैं, तो हमें कास्ट के बारे में पता होता ही नहीं है कि विच कास्ट वी बिलोंग टू. मेरे कॉलेज के एक स्कॉलरशिप क्लर्क ने, और मोस्टली स्कॉलरशिप क्लर्क्स आर अपॉइंटेड स्पेसिफिकली फ्रॉम दी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज ओनली. स्कॉलरशिप क्लर्क्स जो होते हैं मोस्टली एससी कम्युनिटी से होते हैं, सो दैट किसी के साथ कोई बच्चा छूट ना जाए. सो मेरे कॉलेज में उस स्कॉलरशिप क्लर्क को, अभी यू सेड व्हाट आर द मार्कर्स ऑफ कास्ट, मुझे मेरे कास्ट बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती. लास्ट नेम से ही पता चल जाता है ये कहां से है. तो किसी को मेरे कास्ट बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. और वो भी मेरा सरनेम अंबेडकर है, तो रोल नंबर 1 ही मेरा होता था, ए से. रोल नंबर 1 या रोल नंबर 2, मेरे वो ऊपर अग्रवाल होता था या मैं नीचे अंबेडकर होता था. तो स्कॉलरशिप क्लर्क को पता था कि ये शेड्यूल कास्ट का बच्चा है. तो ही अप्रोच मी वन डे और उसने कहा कि देयर स्कॉलरशिप फॉर यू, जस्ट bring your caste certificate and we will give back you the fees. तो मैं खुश हो गया, फीस वापस मिलेगी, और फीस वापस मिली तो पार्टी करेंगे. So I went to my father and I told that scholarship clerk came to me and he asked that produce the caste certificate and they will give the whole fee back. What my father told to me, he told कि अगर तेरी फी 50,000 भी है ना, तो तेरे स्कॉलरशिप क्लर्क को कहना कि हम 50,000 भी भरने को तैयार है, हमें कास्ट रिजर्वेशन की पॉलिसीज का कोई बेनिफिट नहीं चाहिए. वी डोंट वांट एनी बेनिफिट ऑफ द कास्ट रिजर्वेशन बिकॉज वी वर कैपेबल ऑफ दैट. तो हमने कभी कास्ट सर्टिफिकेट निकाला ही नहीं. लेकिन स्टिल टिल टुडे, कल परसों हम लोग एक रेडियो चैनल पे गए थे, तो किसी ने पूछा आप आज भी कास्ट के रिजर्वेशन ले रहे हो. मैंने कहा आपको मुझे मेरे बारे में क्या पता है, मेरा आज कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, फिर भी आई एम टर्म्ड. व्हाट आर दी कास्ट मार्कर्स, मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ कास्ट किस तरह से जुड़ी हुई है आज भी. डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, whose whole life was dedicated for annihilation of caste, जिन्होंने पूरा जीवन कास्ट को ध्वस्त करने के लिए लगाया, कास्ट को खत्म करने के लिए लगाया. The Brahminical system has termed Baba Saheb Ambedkar as a leader of one caste.
ये कितना, हम लोग क्या कहते हैं, दुर्दैव क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, वो वर्ड नहीं मुझे अभी मिल रहा, कि कितना इंडिया का दुर्भाग्य है कि जिस महामानव ने पूरा जीवन जाति खत्म करने के लिए लगाया, भारत के ब्राह्मणिकल सिस्टम ने उसी को जाति का नेता बना दिया, जो जाति के खिलाफ है, जो जाति खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आज वो दलित आइकन है। ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ही इज नॉट एन ज्यूरिस्ट, ही इज नॉट एन एजुकेशनलिस्ट, ही इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, ही इज अ दलित आइकॉन। सो हाउ द ब्राह्मणिकल सिस्टम वर्क्स। और जब मैं मेरे अकाउंट्स के क्लास में क्लासेस आफ्टर कॉलेजेस, वी हैव अ ट्रेडिशन कि कॉलेज में कुछ सिखाते नहीं है, वो फटाफट आते, तो डिटेल लेना है तो क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो हम लोग वो क्लासेस में बैठते थे, अकाउंट्स के हमारे जोशी सर थे, हम लोग, मैं तो बहुत पसंद करता था, आज भी पसंद करता हूं, बहुत अच्छा सिखाते थे। एक दिन माय मदर वॉज हॉस्पिटलाइज, सो मुझे एक हफ्ता क्लास से बंक करके हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा था, तो हफ्ता भर में क्लास गया नहीं था। आफ्टर कमिंग बैक टू माई क्लास में जाने के बाद, लेक्चर्स होने के बाद, मेरे दोस्त मेरे पास आए एंड माई फ्रेंड यूज्ड टू, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि डिड यू डन समथिंग टू द टीचर, प्रोफेसर? बोले नहीं, आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू माई प्रोफेसर। बोले तूने कोई मस्ती की? बोले नहीं की। मैं क्यों मस्ती करूंगा? बोले कुछ गलत बोला सर को? बोले नहीं। बोले क्या हुआ? बोले सर आकर हमको कह रहे थे कि तेरे साथ नहीं बैठना। मेरे साथ नहीं बैठना? मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, पता नहीं, मैंने वो छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। फिर आज जाके उसका आंसर मिलता है कि why my professors were used to ask my friends that don't sit with him, don't sit with him. So if this kind of professors we have in this era, what they are going to deliver, what they are going to imbibe in the coming generations, क्या माइंड में उनके घुसाने वाले वो। और नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, जब मैं कॉलेजेस के लिए सिद्धार्थ कॉलेज में था और फिर मैं सबर्ब्स में शिफ्ट हो गया था, तो बाय ट्रेन वी यूज्ड टू ट्रैवल इन मुंबई। हमारे यहाँ के लोगों को पता होगा, वी हैव लोकल ट्रेन्स। सो वो लोकल ट्रेन से वी यूज्ड टू ट्रैवल टू कॉलेज। तो कॉलेज में ट्रैवल करते समय ट्रेन में ग्रुप्स बन जाते हैं, दोस्तों के, फ्रेंड्स के, कम्यूटर्स के ग्रुप्स बन जाते हैं। रेगुलरली वी यूज्ड टू स्टैंड एट द डोर, तो डोर पे जो लड़के होते थे हमेशा, फिर दोस्ती हो गई। सो व्हाट इज कास्ट मार्कर्स? आपने लास्ट नेम कहा, क्या हो सकता है मार्क कास्ट का? आई हैव दिस पेन विथ मी, आई यूज्ड टू यूज द पायरी कार्डिन पेन, और उस पे ना एक ऊपर एक डायमंड हुआ करता था, आज भी होता है, डायमंड होता था। तो मैंने तो पेन के लिए वो पेन लिया था, मुझे पता भी नहीं था उसके ऊपर डायमंड है या नहीं है। दैट डायमंड वॉज इन ब्लू कलर, दैट डायमंड वॉज इन ब्लू कलर। द कॉम्यूटर, उसे पता नहीं मेरा सरनेम क्या है, किसी को क्या करना है, क्या सरनेम, नाम बता दिया, फर्स्ट नेम बता दिया, हो गया। अब उसे पता नहीं कि मैं किस कास्ट का हूं, मुझे उसे पता नहीं कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं। वो पेन का डायमंड देख के कहता है कि तुम्हारे बहुत लोग हमारे दोस्त होते हैं। मतलब तुम्हारे, व्हाट डू यू मीन बाय तुम्हारे? एम आई एलियन? मैं किसी पर ग्रह से आया हूं, हमारे लोग दोस्त होते हैं? सो द कलर ब्लू डायमंड इज ऑल्सो नाउ डिनोटेड एज ए कास्ट मार्क। एक दोस्त ने मुझे, वो बोलने में शर्म आती है, वो मुझे कहता था तुम लोग अंडरवेयर भी ब्लू पहनते हो क्या? सी, ये सारे
1916 में बाबा साहब ने कहा, 2023 में भी हमारे साथ हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बुक लिखी, वेटिंग फॉर वीजा। अब वीजा किसे लगता है? जैसे मुझे यहां आने के लिए वीजा लगा, बिकॉज आई एम नॉट रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, दैट व्हाई टू रोम फ्रीली इन दिस कंट्री आई नीड वीजा, एंड टू रोम फ्रीली इन इंडिया Baba Sahib needs a visa. Dr. B.R. Ambedkar needs a visa to roam freely in his own country. And still the same incidents is happening with me after Baba Sahib Ambedkar's third generation. बाबा साहब के 3 पीढ़ियों के बाद भी अगर मुझे इसी से सामना करना पड़ रहा है, तो बताइए हम कहां तक अचीव कर पाए हैं, सोशल जस्टिस कहां तक अचीव कर पाए हैं। एंड आई एम राइटिंग माय फर्स्ट बुक, बाबा साहब अंबेडकर रोट वेटिंग फॉर वीजा, बिकॉज ही हैज टू अंडरगो certain caste discrimination in his life, and he has written his experiences in waiting for visa. I have also undergone certain caste discrimination in my life. That's why I chose a new title to a book, Still Waiting for a Visa. After third generation also, I need a visa to roam freely in my home country. I will share my one more experience. In 2014, I was the candidate for Member of Parliament elections from Nanded constituency. That Nanded constituency was the hold of Congress, and the ex-CM at that time, Mr. Ashok Chavan, who was the resident of Nanded only. So, when he got the knowledge that someone from Dr. Ambedkar's family is going to contest in my parliamentary constituency, and if he gets votes, my seat, the traditional seat, might get loose. So, parliamentary constituency के उस constituency में contest लोगों को मैं कंटेस्ट कर रहा हूं, इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं जानी चाहिए। इसका प्रोविजन वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कलेक्टर्स, दे वर वर्किंग फॉर दिस एक्स सीएम। व्हेन वी ऑर्गेनाइज अ रैली, दैट आवर रैली गो फ्रॉम दिस रूट टू दिस रूट ऑन दिस डेट, what conditions I got from the collector office? हमें एक रैली का आयोजन करना था, कार रैली का, बाइक रैली का आयोजन करना था कि हमारी रैली सुबह यहां से निकलेगी और ऐसे यहां पर लोगों को वोट का अपील करने के लिए हम लोग जाएंगे। कलेक्टर ने हमें क्या परमिशंस, क्या एनओसी लाने के लिए कहा कि उस रोड पे जितने घर आ रहे हैं सबसे एनओसी लेकर आओ, सबसे। Yeah, we were denied for bike rally, for car rally. और जब हम वोट्स गिनने के इसमें बैठे हुए थे, वोट्स गिन रहे थे, सब एंड हो गया वोट्स का। I was at the third position. First was the Congress, second was the BJP, and third was me. The reporters of public newspapers, they came to me. उन्होंने मेरे से हैंडशेक किया। हैंडशेक करते करते उन्होंने कहा कि अंबेडकर साहब, आप हमको प्रेस रिलीज दे रहे थे, आप हमको प्रेस में, यू वर गिविंग प्रेस रिलीजेस टू अस टू पब्लिश योर व्यूज, पब्लिश योर न्यूज इन न्यूज़पेपर्स, but we were given 1 lakh rupees each just not to publish your news. सिर्फ मेरी न्यूज पब्लिश ना करे इसलिए हर पेपर को 1-1 लाख रुपया दिया था। बताइए 2023 में भी
अगर ये हालत है और लोग कहते हैं, यहां पर भी हमने सुना, व्हाई वी नीड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एज अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी, ये यहां पर भी आकर हमें कास्ट की आइडेंटिटी लेकर फिर भी हम कास्ट की आइडेंटिटी यहां लगानी होगी, फिर हम लोग चमार महार और ये सब कैटेगरी में हमको स्पॉट किया जाएगा। मैंने कहा अगर आपके यहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है तो मत करो। तो मैंने उनको पूछा कि आपके यहां डिस्क्रिमिनेशन होता है? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, यानी रोग हो रहा है, लोग दवाई के लिए ना कर रहे हैं, दवाई नहीं होनी चाहिए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, if it is happening in global perspective, then we must add caste as a protected category in global perspective. हम ये नहीं कह रहे कि हमें कास्ट के नाम से यहां पर सबको डिक्लेयर कर दो, लेकिन किसी भी प्रीमाइसेस में अगर इस तरह की घटनाएं होती है, कास्ट जैसे आपने बताया, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपके कनाडा में कुछ गाड़ियां घूमते हुए देखी। I saw some cars running on these roads. On the back of the car, that on the glass, it was written JAAT. Jat. When someone is declaring him as a Jat, then he is also declaring you as Chamas. अगर कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो वो ये जताता है कि तुम शूद्र हो। जब यहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू होगा, वी आर नॉट जाट्स, तो फिर यहां पर आपको कास्ट को एज अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी में उसमें आपको लाना होगा। और इसलिए ये काम आज यहां हो रहा है। आपने कहा कि कास्ट आज कौन करता है कास्टिज्म? चलो हमारी कहानी तो पेपर वाले छापेंगे नहीं, कोई बताएगा नहीं। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, रामानंद कोविंद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, when he became president, he went along with his wife to have the darshan of this Jagannath Puri temple. He went with his wife. The Brahmins came outside at the steps of the temple and they stood over there that he belongs to Shudra and Ati Shudra. He should not enter our temple. The first citizen of India, President of India, Ramanand Kovind, was denied the entry at the temple, and you are claiming that caste discrimination is not there. Caste discrimination कैसा है पता है? जब ट्रंप इंडिया में आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं पता है? एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरेगा, वैसी जैसी गाड़ी उनकी जाएगी, सबसे पहले वो क्या करते हैं? जितने भी झोपड़पट्टी है वो सारी कवर कर देते हैं। या सारे रास्तों पे, ताकि ट्रंप को वो झोपड़पट्टी ना दिखाई दे। द सेम इज हैपनिंग विथ अस। हम यहां पर आने के बाद डिस्क्रिमिनेशन, हमारी परिस्थिति इंडिया की और यहां की कोई बदली नहीं है, सिर्फ एक वाइट वॉश किया जा रहा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इज गोइंग ऑन, नो डिस्क्रिमिनेशन इज गोइंग ऑन। और इसलिए आज ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कास्ट ये फिर से उस डेमोन की तरह, एक राक्षस की तरह आपके सामने खड़ा होगा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। हम इंडिया से बाहर यहां शिफ्ट हो रहे हैं कि वहां पर हमें इक्वलिटी नहीं मिल रही, कम से कम यहां आकर इक्वलिटी मिलेगी, लेकिन यहां आकर भी वही 2500 पुरानी सिस्टम यहां से शुरू हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आज इस मूवमेंट में सबको सपोर्ट देना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज कंफ्यूज हैं कि कास्ट को अगर डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाला तो फिर हमें चमार बोल के यहां घूमना पड़ेगा। बहुत लोग अगेंस्ट है हमारे लोग, जयवीर जी सब, कि नहीं वी डोंट वांट। मुझे बहुत सारे कॉल आए कि अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एज अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी यहां पर ऐड हो गई तो फिर हमें यहां पर चमार। हमने कहा कि कास्ट
डिस्क्रिमिनेशन को एज अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी अगर ऐड हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें चमार के नाम से यहां घूमना है। अगर किसी प्रीमाइसेस में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रेस के ऊपर होने वाला डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, जेंडर के ऊपर होने वाला डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, एथनिसिटी पर होने वाला डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, लेकिन कास्ट के ऊपर होने वाला डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाई देता। आप कैसे उसको एड्रेस करोगे जब प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आपका डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं? क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेशन ना एथनिसिटी में बैठेगा, ना जेंडर में बैठेगा, ना कल्चर में बैठेगा, तो फिर आपको न्याय नहीं मिलेगा। वही सिस्को के साथ हुआ, वही गूगल के साथ हो रहा है, क्योंकि कास्ट एज अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी उस लिस्ट में नहीं है। हमारी ये मांग नहीं है कि कास्ट को एज ए डिस्क्रिमिनेट प्रोटेक्टेड कैटेगरी में लाया जाए। हमारी मांग तो ये है कि इस कानून का इस्तेमाल करने की हमारे ऊपर कभी नौबत ही ना आए, हमारे ऊपर नौबत ही ना आए कि इस कास्ट को हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में यूज करने की नौबत है। और एक मार्कर मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, कास्ट मार्कर्स, जो हमने यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात करते हुए देखा कि यहां पर जो इंडियन कम्युनिटी यहां शिफ्ट हुई है, वो अपने कास्ट सुप्रीमेसी को फेस्टिवल्स के माध्यम से भी जताना चाहती है। दे विल ऑर्गेनाइज दिवाली, नवरात्रि, दांडिया दांडियास। अब ये जो आउटकास्ट लोग हैं या शेड्यूल कास्ट लोग हैं, उनका तो कोई कल्चर ही नहीं है, उनका तो कोई भगवान ही नहीं है, उनका तो कोई फेस्टिवल ही नहीं है, तो वो उनसे बाहर रहता है। और जैसे ही बाहर रहते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। फेस्टिवल्स आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ मार्कर्स। सो हम लोगों को ये कास्ट इशू ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एड्रेस करना, वी हैव टू एड्रेस दिस इशू। और मेरी एक दिली तमन्ना ये ऐसी है, डोंट टेक इट अदरवाइज, जो भी टर्म्स हम यूज करते हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम उसको डिफेम कर देती है, कोई भी वर्ड्स। जैसे आज हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं दलित, यू आर यूजिंग दिस वर्ड दलित इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, बट दिस word again we have to take back to the home. And what do you mean by Dalit in the context of India? What resemblance this word gives you as an Indian? Dalit, दबा हुआ, पिछड़ा हुआ, शराब पीकर गंदगी में पड़ा हुआ है, झोपड़पट्टियों में रहने वाला। ये एज ए न्यूट्रल इंडियन मैं आपको दलित के बारे में एज एन इंडियन में ये बताना चाहता हूं कि दलित अगर हम यूज करते हैं तो इस तरह का एक इमेज तैयार किया गया है कि दलित मतलब ये दिन भर शराब पीकर कीचड़ में गटर में पड़ा हुआ रहता है। अब हमें बताइए, आप लोग इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव यू आर फाइंडिंग विद द वर्ड दलित एज आवर आइडेंटिटी, एज द आइडेंटिटी ऑफ इंडियंस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर depressed communities, outcast communities. But back home, we don't like to be termed as Dalits. For example, the Outlook magazine a year before, they termed 100 eminent persons of India as top Dalits. You must be aware of that. Over in that list, Mr. Rahul Pradhan from Nanded was termed as eminent Dalit. And one more singer, I am not getting her name. She used to beg for her livelihood. And then through social media, she became so much viral. Kadubai Khara. Yeah, Kadubai Khara. She was also termed as eminent Dalit. They both came on social media and they told to the people of India and the rest of the world that we are not Dalits. We are not Dalits. I am not what you say.
मैं किसी कंट्रोवर्सी को नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं एज एन इंडियन हम लोग क्या फील करते हैं, जिस वर्ड से हम निकलना चाह रहे हैं आप फिर से हमको उसी में डाल रहे हो। क्या एज एन इंडियन आप अपने आप को दलित लगाना पसंद करोगे? एनीवन इन दिस हाउस, इन दिस हॉल, क्या कोई अपने आप को दलित बोलना पसंद करेगा? वन या आई एम जस्ट चेकिंग कि कितने लोग फेवर में हैं। तो सोचो ये वर्ड लेकर हम मूवमेंट कर रहे हैं और हम सपोर्ट ही ना करें। आई वॉन्ट टू सपोर्ट इन यूके व्हेन आई गो इन लंडन, because they don't understand what you mean by scheduled caste, because they don't have any schedule of the caste with them. So we have to use the word Dalit to let them know that from which strata we belongs to. But when we go back to India, we get trolled by the Indians, and that too Ambedkarite leaders that see he is also terming himself as a Dalit. That's the problem. So it is my personal request that in spite of the Dalit, find a global word. Likewise, when we started this event, we paid respect to the owners of this land, the indigenous people. Likewise, we are the owner of our land, the India. For past 2,500 years, we are living in India. The caste is, Baba Saheb Ambedkar says the word Mahar, who were Mahas, is an essay written by Baba Saheb Ambedkar. Baba Saheb says this word is not found in Shrutis, in Rig Veda, in Manusmurti. These words are not there in Manusmurti, Rig Veda. So these words, Mahar, Chamar, these all words, it has been given recently. ये हमें अभी दिए हुए नाम है। ये ऋग्वेदा में नहीं मिलते, मनुस्मृति में नहीं मिलते, तो हम है कौन? बाबा साहब ने उस समय एज हु वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स में फर्स्ट पेज पे लिखा कि ये अनटचेबल होने से पहले दे वर ऑल बुद्धिस्ट। हम सारे बुद्धिस्ट थे। चाहे वो हड़प्पन संस्कृति हो, मोहनजोदाड़ो के समय का हो, हम इंडिया में रहते थे। एससी एसटी ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये टर्म्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ये लिस्ट बनी, तो उससे पहले हम कौन थे? वी वर इंडिजिनियस। इन स्पाइट ऑफ नेमिंग अस एज दलित्स, वी आर इंडिजिनियस. And this indigenous community is present in every country, in Australia, in Canada, in US, in Japan, every country. If this term is denoted to this Dalits or whatever you term them, the whole world will stand for our cause. The whole world. That indigenous peoples of India are being threatened by the invaders, the Aryans, the Brahmins. They are being threatened. They have not given the right in media, not parliament, not judiciary. So this is my personal humble request to all the global leaders that please don't call us Dalits. When I was doing my MBA, I used to read this Forbes magazine and every economical magazines. In year 2003, maybe in September, the Forbes magazine published on the main page, the cover page, a photograph of a person, and above that the heading was richest Dalit in the world. I took that magazine. I read about that entrepreneur, what he did in his life. उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे इंडस्ट्रीज खड़ी की, कैसे स्ट्रगल किया, और आज उन्होंने कितने पैसे कमाए, वो सारा मैं पढ़ रहा था.
वो पढ़ने के बाद मैंने वो बुक बंद की और सोचने लगा, इतना पैसे कमाने के बावजूद भी ही इज दलित। और ये क्यों है पता है? क्यों है? आप लोग तो यहां कनाडा में बस गए हो, आप आज भी जाओ, होशियारपुर जाओ, फगवाड़ा जाओ, बुट्टा मंडी जाओ, महाराष्ट्र में किसी भी गांव में चले जाओ, आज भी आपके लोग उसी हालात में हैं, उसी झोपड़पट्टी में हैं, उसी शराब को पी रहे हैं, 500-500 रुपए में वोट बेच रहे हैं। उनकी परिस्थिति अभी बदली नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, वर्ड टर्म दलित ये किसी से चेंज नहीं होने वाला। ये चेंज करना ना तो हमारे डॉक्टर जी के हाथ में है, ना तो जय बिरदी जी के हाथ में है। ये किसके हाथ में है पता है? ये टर्म दलित कब बंद होगा? क्योंकि जितने भी पैसे आप कमा लो, कितनी भी तरक्की आप अपने लाइफ में कर लो, जब तक आपके कम्युनिटी की तरक्की नहीं होगी तब तक आप लोग दलित ही कहलाओगे। तब तक आप दलित कहलाओगे। आपकी इंडिविजुअल तरक्की किसी काम की नहीं है जब तक आपकी कम्युनिटी की डेवलपमेंट नहीं होती। कितने भी पैसे कमा लो, आप कनाडा में भी आकर क्या कहलाओगे? बिकॉज बैक होम योर पीपल आर स्टिल स्ट्राइविंग फॉर देयर लाइवलीहुड, स्टिल स्ट्राइविंग फॉर दैट। आज भी हमारा कोई बॉन्डेड लेबर खेत पे नहीं गया। बीड़ की एक घटना है कि उस लेबर को जहां पर वो सोया था, बुखार आया था, इसलिए वो गया नहीं। किसी के फार्म पे वो लेबर काम कर रहा था, पैसे दिए हैं तो उसे जाना पड़ेगा, इसलिए वो फार्मर वहां पर आया और जहां पर वो सोया है उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसे जला दिया। We had this atrocity in महाराष्ट्र। ये हालत है आज भी हमारे लोगों की, और इसलिए हम लोग यहां पर सूट बूट टाई कोट पहनने के बाद भी वी आर दलित्स। इसलिए मैं आज, आप लोग यहां पर बैठे हो, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यहां पर आज आकर पूरा दिन कनाडा में बैठकर ये सारे टॉपिक सुनने का, लेकिन फिर भी आज आप यहां पर इंडिया की समस्या को यहां डिस्कस कर रहे हो। मैं बाबा साहब जिस तरह का कलेक्टर निर्माण करना चाहते थे, वो कलेक्टर आज मुझे आप सब में दिख रहा है। कौन सा कलेक्टर पता है? जब बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे, व्हेन ही वाज लॉ मिनिस्टर, ही गॉट अ न्यूज दैट वन ऑफ आवर कम्युनिटी मेंबर, वो कम्युनिटी स्टूडेंट, he passed the exam of this collector and he became IS officer at that time. Baba Saheb Ambedkar was very happy to have this news that our student has become an administrative officer. So as a minister, he requested that officer to see him, that newly appointed collector or officer. He got the information that Baba Saheb Ambedkar has called him to see him. So this collector arrived at Dr. Baba Saheb Ambedkar's residence in Delhi. Baba Saheb was reading some newspaper. Baba Saheb ने वो न्यूज़पेपर हटाया। कलेक्टर आया, कलेक्टर ने कहा, बाबा साहब यू कॉल्ड मी टू सी यू। बाबा साहब ने कहा हाँ, यू बिकेम अ कलेक्टर नाउ। तो उसने कहा यस, आई एम बिकम कलेक्टर। सो यू मस्ट हैव गॉट द कार विद रेड लाइट, दैट सायरन वाली कार होती है ना हमारे यहाँ पे, लाल बत्ती वाली गाड़ी। यू मस्ट हैव गॉट दैट। यस, आई हैव गॉट दैट। बाबा साहब ने कहा डू वन थिंग, whenever you get time in 1 week or 2, just sit in a car and just go around your villages, the village in which you are staying. जिस गांव में तुम रहते थे
वहां पर एक चक्कर लगाकर आया करो, हफ्ते में 2 हफ्ते में, जब भी तुम्हें समय मिले। ओके, आई विल डू दैट। और फिर बाबा साहब अपना पेपर पढ़ने में बिजी हो गए। आधे घंटे बाद जब बाबा साहब ने पेपर हटाया, बाबा साहब ने देखा द कलेक्टर वाज स्टैंडिंग ओवर देयर ओनली। बाबा साहब को लगा ये अभी भी यहाँ क्यों खड़ा है, और कलेक्टर को लग रहा था बाबा साहब ने मुझे मिलने बुलाया तो कुछ बात करनी होगी, कुछ बात करनी होगी। शायद उस कलेक्टर के मन में यह था कि अभी मैं नया नया कलेक्टर बना तो शायद बाबा साहब को मुझसे कुछ फंड्स चाहिए, जो उसके दिमाग में वो था। बाबा साहब को पता चल गया कि ये क्या सोच रहा है। बाबा साहब ने कहा, व्हाई यू आर स्टैंडिंग, तुम लोग गए क्यों नहीं? बाबा साहब आपने बुलाया था। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। नहीं, लेकिन आपने फिर मुझे किस लिए बुलाया था? बाबा साहब के समझ में आ गया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाबा साहब ने पेपर साइड में रखा और बाबा साहब ने कहा कि तुम्हें पता है, डिड यू नो व्हाई आई आस्क यू टू सिट इन द कार एंड गो अराउंड द विलेज इन विच यू वर लिविंग? कलेक्टर ने कहा, नो आई डोंट नो व्हाई यू आस्क सच अ रिक्वेस्ट। बाबा साहब ने कहा कि जब तुम अपनी गाड़ी में बैठकर, उस लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर अपनी बस्ती में जाओगे, अपने विलेज में जाओगे, तो जैसे ही तुम्हारी गाड़ी उस विलेज में आएगी तो कुछ औरतें वहां कपड़े धो रही होंगी। वो कपड़े धोते धोते तुम्हें देखेगी, अरे ये कल तक तो हमारे गली में खेलता था, आज कलेक्टर बन गया। वो गाड़ी थोड़ी और तुम्हारी आगे जाएगी, कुछ औरतें बर्तन मांज रही होंगी। बर्तन मांजते मांजते वो तुम्हें देखेगी, झाड़ू लगाते लगाते वो तुम्हें देखेगी, और हर औरत यही सोचेगी कि ये अगर कलेक्टर बन सकता है तो मेरा बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है। और मुझे आज अभिमान है आप सभी को देखकर, कोई लेना देना नहीं है आपको। कोई 46 ईयर से है, कोई 50 ईयर से कनाडा में है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आज आपके गांव में वापस जा रहे हो। चंचल जी जब आती है इंडिया में, मुझे 3 महीने पहले से ही इन्फॉर्म करके रखती है, हम ये तारीख को आने वाले हैं, ये तारीख तक रहने वाले हैं, 7 दिन कहीं जाना नहीं, हमारे यहाँ आना है। और क्या करते हैं पता है? पार्टीज नहीं अरेंज करते कि हम लोग इंडिया आए। सुबह 7 बजे एग्जैक्टली एट 7 AM we leave her house and go to villages and villages. बाबा साहब का इक्वलिटी का मैसेज, बुद्धा का मैसेज, गुरु रविदास जी का मैसेज, हम गांव गांव में जाकर लोगों का काम करते हैं। गांव गांव 7 दिन में लगभग 45 मीटिंग्स हमने लास्ट ईयर की। 45 मीटिंग्स। सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 2 बजे घर आते हैं। सो दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं तो कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशंस में, आज मैं कह रहा हूं कि हमें दलित आइडेंटिटी से बाहर निकलना है, तो वो कैसे निकल सकते हैं? वी आर अ ग्लोबल कम्युनिटी नाउ। वी हैव सीन द लिस्ट ऑफ गुरु रविदास सभास, अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, आना, गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क, कैलगरी, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान. We have more than 1 lakh organizations in India after the name of Ambedkar. सिर्फ अंबेडकर नाम लेकर 1 लाख ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में बनी है. अब इंडिया के बाहर इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस. बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें कभी भी दलित आइडेंटिटी लेकर जीने के लिए नहीं कहा था. अगर दलित आइडेंटिटी को ही लेकर हमें जीना होता तो मुझे लगता है बाबा साहब ने कभी धर्मांतर नहीं किया होता. धर्मांतर बुद्धिज्म की ओर बाबा साहब नहीं जाते. बाबा साहब हमें जाते जाते एक बुद्धिस्ट आइडेंटिटी देकर गए. बुद्धिस्ट आइडेंटिटी देकर गए ताकि वर्ल्ड हमें एज अ बुद्धिस्ट पहचाने, एज अ बुद्धिस्ट पहचाने. लेकिन मैं अपना ही उदाहरण, लास्ट ईयर I am like the host introduced me that I am standing committee secretary of World Fellowship of Buddhists.
World Fellowship of Buddhists is a consortium of 128 Buddhist countries, and this organization was formed in the presence of Dr. Babasaheb Ambedkar in 1950. In 1950, 27 Buddhist countries, they gathered together and they formed one organization named as World Fellowship of Buddhists. In 2023, 128 countries are member of this consortium, of this organization. Last year, in the month of October, World Fellowship of Buddhist conference was a global conference. I was, as I am part of it, मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा तो वी हैड दी कार्स रिजर्व फॉर अस, बड़ी वाली का वो जो वैन्स होती है, तो मेरे बगल में ताइवान के फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए थे। तो एक दूसरे को हमने ग्रीट किया और उन्होंने सिर्फ मुझे पूछा कौन से कंट्री से, मैंने कहा इंडिया। आई एम ताइवान, राजद ठीक है इंडिया। तो उन्होंने क्या कहा पता है, यू आर फ्रॉम इंडिया, डू यू नो डॉक्टर अम्बेडकर? मैंने कहा यस आई नो। उनको पता नहीं मैं कौन हूं, तो वो मुझे बाबा साहब के बारे में पूरा बता रहे थे, सारी हिस्ट्रीज कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, बुद्धिज्म को किस तरह से रिवाइव किया। और जब हम लोग ये कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के साथ जब मिल रहे थे, जैसे हम लोग बाहर मिलते हैं सबसे, मैं यहां से हूं, मैं यहां से हूं, यहां से हूं। चाइना का डेलीगेशन जब हमारे सामने आया, हमारे गले में आई कार्ड्स थे, इंडिया लिखा हुआ था, तो रुके, हमारे लिए रुके सामने, ओह इंडिया से। और फिर वो हमारे सामने आए, विच कंट्री? इंडिया। क्या कहा पता है उन्होंने? ओह अम्बेडकर इंडिया। आज भी पूरा वर्ल्ड हम लोगों को इंडियंस के नाम से, मोदी के नाम से या गांधी के नाम से नहीं जानता, बाबा साहब के नाम से जानता। आज भी हम लोग वहां बैठे हैं। मुझे लगता है बाबा साहब ने एक नाम क्या था ऑर्गेनाइजेशन का, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, उसका मोटो, उसका ब्रीद वाक्य हम लोग कहते हैं, उसका ब्रीद वाक्य दिया था, टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से हमें एजुकेट करने का ये मिशन शुरू किया। एजुटेट करने के लिए बाबा साहब ने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, लेकिन हम लोग आज भी हमारा एजुकेशन चल रहा है, हम लोग एजुकेट भी हो रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे। वी आर नॉट गेटिंग ऑर्गेनाइज। और मुझे लगता है कि बाबा साहब को ये बात पता होगी कि मेरे लोग ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, और मुझे ऐसा फील होता है कि आज भी हमें ऑर्गेनाइज करने का काम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ जो बैठे हैं वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमें ऑर्गेनाइज करने का काम बाबा साहब आज भी हमारे लिए कर रहे हैं। तो कई सारे आज कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस, ये पूरा रिसर्च इसके ऊपर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं केसी सुलेख जी का उल्लेख करना चाहूंगा, आज भी वो जिंदा है, जिन्होंने बाबा साहब के साथ काम किया। मुझे लगता है 98 इयर्स के होंगे या 98 इयर्स के हैं। बाबा साहब ने उनके लिए लेटर्स लिखे हुए हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उनसे हमने डिस्कशंस की, क्योंकि हमारे लिए जिंदा एनसाइक्लोपीडिया बाबा साहब क्या चाहते थे, बाबा साहब क्या सोचते थे, बाबा साहब के साथ मीटिंग्स होती थी तो कैसे बाबा साहब क्या एड्रेस करते थे, वो सब उनसे हम वो सारा रिकॉर्ड करके लिया है। क्योंकि ये भी हमारी एक क्या कहते हैं विरासत है कि इनसे भी हमें सीखना है, जिन्होंने बाबा साहब के साथ काम किया। तो ये सारी काम हमें करना है। कास्ट को, दलित को अपने नाम के पीछे से हटाना है, तो हमें उस तरह से ग्लोबली उभरना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, वी लैक रिसोर्सेस। इन मीडिया you saw the list of YouTube channels. Where is our satellite channels? जिसको टीवी पर you are seeing TV on TV, सबके घर में आज तक आता है, या कनाडा में जी न्यूज आता है। क्या आज तक और जी न्यूज हमारी खबरें दिखा रहा है? नहीं। 75 years of independence,
and we don't have a slot of 75 seconds out of 24 hours on this Indian media. 75 seconds नहीं है उनके पास. मैं इसलिए गूगल न्यूज कभी कभी देखता रहता हूं. गूगल न्यूज पे जी न्यूज क्या दिखाता है? साइकिल वाला चल रहा था, उसका दूध गिर गया, 10 लीटर दूध वेस्ट हो गया. 10 लीटर दूध वेस्ट हो गया, वो न्यूज दिखा सकता है. लेकिन हमारा बच्चा किसी के घड़े को हाथ लगाने पर पीट पीट कर उसके मार डाला, ये न्यूज वो नहीं दिखाता. बल्कि क्या दिखाता है? उस स्कूल में घड़ा ही नहीं था. यानी 75 सेकेंड्स हमारी न्यूज आप नहीं दिखाते हो, बल्कि हमारे अगेंस्ट न्यूज चलाते हो. मनीषा वाल्मीकि का जब हत्या होती है, उसके साथ बलात्कार होता है, तो न्यूज क्या चलती है? इन्हें नक्सलाइट्स फंड कर रहे हैं. दिस वाज न्यूज ऑन न्यूज चैनल्स. दे आर नक्सलाइट्स. नक्सलाइट्स इनको फंडिंग कर रही है एजिटेशंस करने के लिए. These are the news going on Indian media. We don't have a 75 seconds on news media. In Punjab, mostly the Punjab community is sitting over here. Dr. Pamposh, she was studying MBBS in medical college. She was harassed with caste slurs, जाति सूचक गालियां उसे दी जाती थी. वो अपने घर पर बात करती थी. Please let me know how much time I have. 5 more minutes. Okay. So, वो कास्टी स्लर्स झेल नहीं पाई. डॉक्टर वेमुला का भी नाम यहां पर आया. हमारे यहां पर IIT बॉम्बे में भी ये हुआ, और फिर उसने सुसाइड कर लिया. कौन सी कम्युनिटी है ये जो सुसाइड कर रही है? कौन लोग हैं बताइए? 2020 में जब नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लग गया था, और वो भी मार्च के एंडिंग में जब बाबा साहब की जयंती आने वाली थी, तो हम जयंती, बाबा साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाए. एज आई एम स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आई यूज्ड टू रीड ऑल दिस इकोनॉमिकल पेपर्स. ऑनलाइन इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ 16th April, I undergone one news, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है. वो कहते हैं कि बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट नहीं हो पाई. मैंने कहा कि इकोनॉमिक टाइम्स को क्या लेना देना बाबा साहब की जयंती हो रही कि नहीं हो रही. तो मैंने वो क्लिक किया, पढ़ो तो इसका दर्द क्या है, इसको दुख क्यों हो रहा है. और फिर वो न्यूज जब बड़ी हुई और मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि बाबा साहब की जयंती लॉकडाउन के वजह से नहीं होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी को 2100 करोड़ रुपए का लॉस हो गया. ऑन दैट फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में वो क्लिक हुआ कि एक दिन में हम जब बाबा साहब को सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं अपने आप को सोच रहा था कि क्या क्या करते हैं. नए कपड़े लाते हैं, घर को पेंट करते हैं, कोई लोग नई बाइक खरीदते हैं, कोई नई कार खरीदते हैं, फूल लाते हैं, मिठाई लाते हैं, पटाखे लाते हैं, कोई अगर प्रोग्राम अरेंज करना है तो डीजे लाते हैं, किसी ऑर्केस्ट्रा को बुलाते हैं, सिंगर को बुलाते हैं, पताका लगाते हैं, मंडप डालते हैं, लाइट्स लगाते हैं, साउंड्स लगाते हैं, और इससे हम मार्केट को पैसा देते रहते हैं. एक छोटी सी गांव की जयंती भी आज 2023 में 5 लाख से कम नहीं होती है. गांव में भी 1-1.5 लाख की तो होती होगी. सोचो, हर भारत के गांव में से बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, और हर गांव एक दिन में इंडियन इकोनॉमी को पैसा देता है. एक रात में 2020 में हम कितने रुपए दिए थे? 2100 करोड़. 2019 की बात होगी, तब तो उसने रिकॉर्ड किया होगा 2100 करोड़. ये 23 की जयंती मैं इंडिया में देख कर आया हूं. इस साल ये जयंती लगभग 5000 करोड़ की थी. 5000 करोड़. कौन से स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं? जिनकी कम्युनिटी अपने महापुरुषों को मनाने के लिए एक रात में 2100 करोड़ खर्च करती है. दैट आर कंपेल्ड टू डू सुसाइड्स. क्या हम अपने खुद के, हमारे ये बच्चे सुसाइड करने के बाद इन्हें ट्रिब्यूट, क्या कहते हो आप लोग, जो हम अभिवादन करते हैं, श्रद्धांजलि कैसे देते हैं?
मोमबत्ती लगाकर? वी डोंट बिलीव इन सोल। थोड़ा सा हिंदुइज्म को अगर कोट करें, बच्ची की आत्मा अगर कहीं है तो क्या वो आपके मोमबत्ती लगाने से खुश होगी? क्या आपके मोमबत्ती लगाने से शांत होगी? और कितने साल ये मोमबत्ती लगाने वाले हो? कितने साल ये मोमबत्ती रैली निकालने वाले हो?